High level language, when we are talking about languages, there are the three kinds of major types, that low level, medium level and high level language. So if we are talking about a low level, it directly deals with the binary language or zeros and ones. If we are talking about the high level, which is understood to us, we can easily cope up with that particular high level language. And the one which we call as a middle level language, which is intermediator in between the high and low, and which signifies that it is easy to understood by the computer also, and it is also easy to understood by the human or the programmer also. Likewise, high level language for the simplified programming task by reducing the number of a computer operation details that had to be specified. It just means that high level language can reduce the sum of the work, so that the computer can recognize, or computer can specify their task with respect to what we are giving as an instruction to that particular processor. High level language like COBOL, which is one of the ancient language, we can say it as an ancient. Why? Because right now COBOL is not used. That's why we say C language is having such a potential. It is invented in 1972, means we can say that in the 70s decade, but still 21st 2021 still it is used, still it is studied, and still we can have multiple applications, even if some of the operating system is having the kernel which is designed and developed in the C language. So C language is having a good potential since 50 years. Then Pascal, then Fortran, then C are a more abstract, easier to use, and more portable across the platforms as compared to the low level programming language, means binary language. Instead of dealing with registers, memory addresses, and call stacks. What is register? Can anyone tell? Anyone? Hello, am I audible? Yes, sir. So, what is register? Sir, repeat करा sir एक बार. Ah, yes. Question is, what is register? Anyone, anything? Register is a device which opposes the current. Okay, 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 okay. Again, anyone? Sir, register or register? Mm-hmm. We can't say like that. So, regis- Uh-huh. Yes, yes. so resistor is a device which opposes the flow of current, or which controls the flow of current Okay, okay. in a circuit. That is related to the electrical concept, right? But when we are talking सर about the, yes, yes, रजिस्टर सर ते सीपीयू मध्ये स्टोरेज सी रिलेटेड काहीतरी So आहे. it exactly, is a exactly, temporary storage exactly, Sir, exactly. It is Correct, used to Riya. pass the data. hello. Yes, built yes. into your CPU. सर रेजिस्टर जो आहे तो एका लिमिट पर्यंतच करंट पास करतो Mm-hmm. आणि व्होल्टेज ड्रॉप करतो आणि करंटला डिवाइड सुद्धा करतो. Exactly, exactly. सभी के answers correct है. But my question is with respect to the language, means with respect to the computer. ठीक है. So in case of computer, if we are talking, sorry, if we are talking about the computer, register is one which is having a very small unit of a memory, very small storage, as well as register is having a fast computational power with respect to the or with comparison with primary memory, secondary memory, or even if we can say any device which holds the some data like pen drive, बाद में आपके एस डी कार्ड्स है, ये जो भी स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है, इनके कंपैरिजन में रजिस्टर ये बहुत फास्ट होता है जो डेटा स्टोर करता है, राइट. When we talking about the electrical component as a register,
then definitely it is correct that register is having such functionalities in case of electrical engineering. So that was a different part. But in case of this, instead of dealing with the register, memory address and call stack, a programmer can concentrate more on the logic to solve the problem with the help of variables or arrays or a boolean expression. So what exactly that they say, when we are dealing with the assembly language, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में क्विकली एक असेंबली लैंग्वेज का एग्जांपल देखा था. In case of assembly language, what we are doing, we are having a one particular machine code, and that machine code is simply we are expressing as a move al comma 061h. So what exactly it is? Move is a op code, operational code हम उसको बोल सकते हैं move, and it moves the hexadecimal value 61 into the processor register named as AL. So register is a hardware type of device, we can say that, in which we are putting the one particular value which is a hexadecimal value. Okay, but for that we have to remember what the value is. We should remember that a hexadecimal number system, octal number system or binary number system, that we should know it. Okay, so is it necessary that if you want to become a programmer, if you want to become a computer user, that you should know what exactly it is, all the number system? It is certainly not. If you want to use a certain applications, not the complete applications, if you want to use the certain applications, in that case we should know that how to design and develop it. Just like that, when we try to drive a particular टू व्हीलर, जब आपको टू व्हीलर सीखनी रहती है तो आप ये सीखते हो क्या कि इंजन कैसे वर्क करता है, रेयर व्हील यानी पिछला जो व्हील है वो रोटेट होता है, फिर उसके बाद आरपीएम कितना जनरेट होता है और फिर सामने वाला व्हील रोटेट होता है, फिर हमारी व्हीकल चलने लगती है. गियर बॉक्स में 4 या 5 जो गियर होते हैं उसका जो भी रोटेशन रहेगा, ठीक है, वो डिसाइड कैसे होता है. ये सारी छोटी छोटी जो इंटरनल चीज़ें हैं वो हम नहीं सीखते. वी ओनली फोकसेस ऑन अ एक्सटीरियर पैरामीटर. What exterior parameter is? We should have a license, we should have to manage in a crowded area. ठीक है, गियर कैसे मैनेज करना. ठीक है, अगर ज़्यादा भीड़ है तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे हम ड्राइव करते हैं. मोपेड अगर है तो वो भी गियर का कोई कंसर्न नहीं रहेगा. बट इन केस ऑफ अ गियर बाइक इफ यू आर हैविंग, then we just have to manage as per the situation, right? So we only focuses on the sum of the external parameters. क्लच होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, वो अच्छे से वर्क होना चाहिए, एक्सीलेटर होना चाहिए, स्पीड अच्छा होना चाहिए, गाड़ी का एवरेज अच्छा होना चाहिए. ठीक है, और भी कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी. सो दैट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज विल बी ऑल आर एक्सटर्नल. वी नेवर डील और नेवर एवर थिंक अबाउट दैट इंटरनल, दैट देयर पार्ट्स. ठीक है, हाउ दैट पार्ट्स आर डिजाइन, हाउ दे वर्क. ठीक है, how the combustion will be taken in the combustion unit, means how the ignition will be generated or how the power will be generated in the combustion unit. So ये छोटी छोटी चीज़ें जो है जो मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड आती हैं, ठीक है, तो वो हम डिस्कस नहीं करते जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं. ठीक है, या फिर किसी को पूछते भी नहीं, बताते भी नहीं. ठीक है, what exactly it is, when we have to design and develop a one software or the application, whether it is necessary that we should have to look inside the memory, inside the register, inside the call stacks, there should not be need. But if you don't have the high level programming language, then we have to use the assembly language. और assembly language अगर यूज़ करनी है तो आपको रजिस्टर के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, कोड रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर है, तो ये जो रजिस्टर्स हैं इनकी कैपेसिटी कितनी है, हाउ डेटा कैन बी एक्सचेंज इन बिटवीन देम, और ज़्यादा अगर कैपेसिटी बढ़ानी है उसकी तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा. सो एवरीथिंग दैट वी हैव टू लुक when we are using the assembly language. But in case of a low level language, binary language, then our concern is more that we have to remember every numbers conversion. जो भी डेसिमल नंबर होगा उसका हर एक डेसिमल नंबर का कन्वर्शन आपको पता होना चाहिए अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है. सो बोथ आर हैविंग अ डिफिकल्टीज regarding to the doing some
or solving the particular problem. But in case of a high level language, that functionality is given. We are having some tools, ready-made tools, right? Variables are there. Arrays में भी 2-3 लोगों को ही पता होगा कि अरेज क्या रहता है। सिमिलर डेटा टाइप जो रहेंगे, डेटा टाइप यानी क्या होता है कि जैसे एक एक क्लास का हमको एज एन एवरेज निकालना है कि कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, ठीक है। तो ये पूरा एवरेज जब निकलेगा मार्क्स के हिसाब से, उनके परसेंटेज के हिसाब से, सो ऑल वैल्यूज दैट विल बी जनरेटेड विच विल बी इन अ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। 70.13, 89.14, ये परसेंटेज ऑफ रिजल्ट ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड लाइक दैट, ठीक है। सो जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद का, पॉइंट के बाद का, ठीक है। सो इट इज ट्रीटेड एज अ वन ऑफ द डेटा टाइप एंड दैट डेटा टाइप इज कॉल्ड एज अ फ्लोट, राइट। अगर वही इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स इंडिविजुअल पर्सन के अगर हम लेते हैं, जैसे फिजिक्स में मुझे मार्क्स मिले 70, 100 आउट ऑफ, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ 70, ये फ्रैक्शनल पार्ट में कभी नहीं आएंगे क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू ही रहेगी आपकी मार्कशीट के ऊपर, ठीक है। उसको हम इंटीजर वैल्यू बोलते हैं, ठीक। जैसे आपका नाम है, सरनेम है, फादर्स नेम है, ठीक है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, right? First name, middle name and surname, it is nothing but the combination of character. If you want to give the data to the system as in a character, we have to use the data type char, char, ठीक। एंड अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स दे रहे हैं, जैसे नाम दे रहे हैं या फिर एड्रेस दे रहे हैं आपका घर का, सो इन दैट केस इट इज यूज्ड एज अ स्ट्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ अ मल्टीपल कैरेक्टर इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। तो ये कुछ ऐसे डेटा टाइप्स रहते हैं। इसमें आगे भी है, डबल है, बाद में integer, character, float, double, then string, these are the data types. So ये data types का use जब हम करते हैं, ठीक, तो सिमिलर डेटा टाइप की अगर एंट्री करनी है, जैसे एक क्लास में 65 बच्चे हैं, सेक्शन ए में 65 बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके रोल नंबर्स, ऑल रोल नंबर्स शुड बी इंटीजर। किसी का रोल नंबर ऐसा रह सकता है क्या 20.5? इज इट पॉसिबल? No. सर्टनली No, No. sir. No, sir. 20.5 ये रोल नंबर नहीं हो सकता है। अगर किसी ने लगभग सभी ने देखा होगा, हैरी पॉटर देखिए, हैरी पॉटर, उसमें से एक शुरुआत के कुछ सीरीज में कोई तो एक प्लेटफॉर्म नंबर उन्होंने बताया था, किसी को याद है? 7, 9:10। पौने 10, ऐसे ऐसे ही कुछ भी था, कुछ तो भी इन बिटवीन था, वो फ्लोटिंग वैल्यू थी। और वो ओपन होता था एक पिलर में, एक पिलर के अंदर उनको एंटर करनी पड़ती थी, क्योंकि वो हैरी पॉटर पूरी सीरीज जादू के रिलेटेड है, इमेजिनेशन। तो वो पिलर के अंदर अगर आप जाते हो सक्सेसफुली, तो आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में एंटर होते हो, ठीक है। तो पौने 10 की कुछ तो भी वो प्लेटफॉर्म था, जो 9 और 10 के बीच में कहीं तो भी लाई करता था, यहाँ वहाँ पे रहता था, बट वो किसी को दिखता नहीं था, नॉर्मली लोगों को नहीं दिखता था, ठीक है। तो ऐसे कुछ फिक्टिशियस चीज़ें उसमें बताई गई है, ठीक। सो व्हाट एग्जैक्टली योर रोल नंबर शुड नॉट बी 20.5, 11.5, 12.5, it should be 10, it should be 11, it should be 12, right? Your percentage, it is not restricted to the 60%, 70%, 80%, ठीक है। it may be in the fractional part, right? Your address, एड्रेस कभी रह सकता है किसी का 15, गली नंबर 15, रास्ता 25, और हाउस नंबर तो रह सकता है, और कॉलोनी क्या है 26 कॉलोनी, अमरावती। ऐसा किसी का कोई एड्रेस रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है, ठीक है। यू कैन हैव अ सिंगल डिजिट एज अ हाउस नंबर और अ लेन नंबर और अपार्टमेंट नंबर और फ्लैट नंबर, एक सिंपल सिंपल एक नंबर रह सकता है उसमें। आपके रास्ते का जो नाम है वो नंबर से नहीं रह सकता, सिटी का नाम भी आप नंबर से नहीं रख सकते, ठीक है। और जो कॉलोनी है उसका भी आप नंबर से नहीं रख सकते। सो इंटीजर इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इन दैट एड्रेस। सो एड्रेस इज ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर वन और अ स्ट्रिंग वन, ठीक है। कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा तो स्ट्रिंग बनेगा, ठीक है। और
अब एड्रेस में आपको कैरेक्टर भी यूज़ करना है और इंटीजर भी यूज़ करना है, दोनों चीज़ें चाहिए। तो ये क्या हो गया, मिक्स डेटाबेस हो गया, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ रहेगी उसमें 1 2 3 4 जो भी, और उसके साथ कुछ कैरेक्टर रहेंगे। तो उसको अगर आइडेंटिफाई करना है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसके लिए एक और डेटा टाइप है जिसको वैर कैर बोलते हैं, VAR, वैर कैर, CHAR, वैर कैर डेटा टाइप कैन बी यूज्ड, ठीक। तो these all data types, if they are collected in a one particular consecutive manner, ठीक है, so it is called as a array। ये सारी चीजें जो है it's related to the array, ठीक है। array is nothing but the collection of a similar data types and which are stored in a consecutive memory location, ठीक है, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन रखे हैं, ठीक है, that is nothing but the array। then there are the some boolean expressions, right? So for example that we are having a assembly language code, एक assembly language code उन्होंने दिया है and that can be converted into the high level language later on। The code is load a is what, nothing but the, it is a one variable, add b, add operation will be performed on a b, then store c, ए को लोड किया, बी को ऐड किया ए के साथ, और वो जो रिजल्ट है वो स्टोर किया सी में, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हमारे, कि सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। उसको असेंबली लैंग्वेज में उन्होंने कैसे पुट किया, ए जो है पहला, दैट ए इज गेटिंग लोडेड इनटू द सिस्टम, b is added into that particular a, and the whole result of a plus b is getting stored into the c। so with the help of a three opcodes load, add, store, असेंबली लैंग्वेज ने वो ऑपरेशन परफॉर्म करके बताया, जो हम नीचे जो देख रहे हैं, यूजिंग फोर्ट्रॉन द अबव कोड कैन बी रिप्रेजेंटेड c इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी दो नंबर्स की हमको एडिशन करनी है, ठीक है। नाउ इफ यू परफॉर्म in case of a high level language or C language, we have to just take a as a variable, b as a variable, take a value, add it into the C and print the C, ठीक है। ये मैं ओरली अभी इसलिए बता रहा हूँ कि इसका इमीडिएटली आपको मंडे से प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगा, कि इसका इमीडिएटली प्रोग्राम जो रहेगा, हाउ टू ऐड द टू नंबर्स, राइट, हाउ टू ऐड द थ्री नंबर्स विद द हेल्प ऑफ अ C प्रोग्रामिंग, ठीक। so we are just building the base, or we can build a plinth, ठीक है। anyone knows the what is the meaning of a plinth? hello hello Yes, sir. Yes, sir. I thought की connection loss झाला का कालच्या सारखं। anyone knows the meaning of a plinth? have you heard that word plinth? सिव्हिल वाले आहे का कोणी आपल्या याच्यात, सिव्हिल ब्रांच? anyone from civil? Yes, sir. yes, so have you heard that word plinth? maybe not, right? No, So sir. it is the base supporting for something. yes, exactly, when we have to construct the building or house, what we require at the bottom? foundation, right? so without foundation we can't build the structure। जो भी ऊपर स्ट्रक्चर बनाना है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 4 फ्लोर, जितने भी फ्लोर्स बनाने हैं, ठीक है, तो बट उसके लिए क्या लगेगा, आपको फाउंडेशन लगेगा, प्लिंथ लगेगा, ठीक। तो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग अगर हम सीखते हैं तो हमारे पास पीछे का जो डेटा है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो नहीं रहेगा। सो दैट वी आर कंप्लीटिंग complete theoretical plus mathematical logic that we are building in a first unit, and after completion of a first unit we switch to the actual programming where we have to type the particular code। सी लैंग्वेज का जो हम कोड है, ठीक है, वो हम टाइप करेंगे। अभी आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स है, मे बी 2 3 4 5 10 15 लोगों के पास लैपटॉप वगैरह होगा, बट नो नीड ऑफ अ लैपटॉप, वी जस्ट हैव टू इंस्टॉल और डाउनलोड द वन एप्लीकेशन। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करना है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशन वी कैन प्रैक्टिस फॉर द सी प्रोग्रामिंग,
ठीक है। जनरली ये प्रैक्टिकल में हम एग्जीक्यूट करते थे कोड्स, बट right now we don't have access in the college due to pandemic, so we can have a application, and with the help of that application we can execute the programs. So we will do it, but c equal to a plus b is quite easy to program in a C language. Okay. But in case of assembly language we have to remember these three opcodes: load, add and store. Similarly subtract के लिए भी कर सकते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट के लिए एस यू बी यूज़ करेंगे ऐड की जगह पे, मल्टीप्लिकेशन के लिए एम यू एल, एंड डिवीजन के लिए डी आई वी अगर यूज़ करते हैं तो वही आपको रिजल्ट मिलेगा जिस प्रकार से यहाँ पे एडिशन का रिजल्ट असेंबली लैंग्वेज में मिलने वाला है। ठीक, देन द अबव हाई लेवल लैंग्वेज code is executed by translating it into the corresponding machine language code with the help of a compiler or interpreter. कंपाइलर यानी क्या है? तो कंपाइलर इन दोनों के बीच का एक यूनिट है दैट कैन कन्वर्ट इन द मशीन टू हाई लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। मीन्स 1010 को क्या कन्वर्ट करेगा वो, जिसमें हम अंडरस्टूड कर सकते हैं उस लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में, और इंग्लिश को कन्वर्ट करेगा 1010 में। सो दैट वाज अ वर्क ऑफ अ कंपाइलर, और इवन इफ इट इज कॉल्ड एज अ इंटरप्रेटर। Then the high level language can be classified into the three categories. The first category is procedure oriented language, that was the third generation. इसके पहले हमने एक लैंग्वेज देखी थी दैट वाज अ मशीन लेवल मशीन लैंग्वेज, इट इज़ अ फर्स्ट जनरेशन. Then assembly language that deals with the second generation, and then there is a third generation language that is a procedure oriented language. Second one, problem oriented language, that is the fourth generation. And the last one, natural language, which is the fifth generation. जैसे वो बोलते हैं ना एलेक्सा टर्न ऑन म्यूजिक, तो एलेक्सा को म्यूजिक और टर्न ऑन ये वर्ड्स जो है ये रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज के वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, वो मशीन को नहीं समझ सकते। मशीन को असेंबली लैंग्वेज समझ सकती है, हाई लेवल लैंग्वेज हैश इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच, ये जो हमारी स्टार्टिंग हेडर फाइल्स रहती है सी लैंग्वेज में, ये ऐसी सारी चीज़ें उसको समझ सकती है मशीन को। बट अभी एलेक्सा को वो भी समझता है कि जो हम उसको एज अ नेचुरल लैंग्वेज में बोलते हैं। एलेक्सा टेल मी हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ अ पश्चिम बंगाल। तो एलेक्सा बताएगी कि अभी इलेक्शन होने का है, इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, 2 मई को काउंटिंग होगा, काउंटिंग होने के बाद पता चलेगा कि हु विल बी द सीएम, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस या ऐसा कुछ भी वो बताएगा। ठीक है, एलेक्सा इज द मशीन, सो इट जनरेट्स और इट कैरी द डेटा फ्रॉम द देयर नेटवर्क, जो भी नेटवर्क होगा, गूगल का होगा या फिर जो भी होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर डेटाबेस से वो नेटवर्क से डेटा फेच करेगा और आपको बताएगा। बट हमने क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा? नेचुरल लैंग्वेज में पूछा। सो दैट वाज अ पर्टिकुलर रियल टाइम बेस application. We can say that we ask the question, we get the answer instantly. ठीक है, so that was a particular fifth generation. So starting with a procedure oriented language, high level language designed to solve a general purpose problem called as a procedure language or the third generation language. This includes basic ये भी एक लैंग्वेज थी जिसका नाम बेसिक था, कोबॉल, फोर्ट्रैन, सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। तो इन सभी में से फिलहाल एग्जिस्ट करती है सी, सी प्लस प्लस, वो भी थोड़ी सी कम हो चुकी है, जावा, जावा इज ऑल्सो यूज्ड, विच आर डिजाइन टू एक्सप्रेस लॉजिक एंड द प्रोसीजर ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक, ऑल्दो द सिंटेक्स ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिफरेंट, दे यूज द इंग्लिश लाइक कमांड्स दैट दे आर इजी टू फॉलो। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज रिक्वायर्ड थी, तो उन्होंने जिन्होंने डिज़ाइन किया इसको उन्होंने इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ले लिया। ठीक है, अब आगे जाके मे बी जैसे अब हमारा एजुकेशन जो रहने वाला है आगे जाके न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के हिसाब से, वो मदर टंग में अगर कन्वर्ट होता है, मे बी यू विल हैव अ कंपाइलर विच कैन अंडरस्टूड द हिंदी, मराठी, इंग्लिश एज एन अ प्रोग्रामिंग। फिलहाल ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस है जिसमें आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, इंग्लिश से मराठी कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, या फिर कोई भी ओरिजिनल लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू डू द प्रोग्रामिंग in a C, we can also use a your own mother tongue. ठीक है, in future it can be happen.
So another major advantage of a third generation programming language or third generation language is that they are portable. यानी एक कंप्यूटर पे अगर आपने उसका कोड लिख लिया, वो एज इट इज़ अगर आपने कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर पे लेके गए तो वहाँ पे भी वो एग्जीक्यूट हो सकता है. We can put the compiler on any computer and create the object code. The following program represents the source code in the C language. तो एक छोटा सा प्रोग्राम उन्होंने बताया है. If value of n जो भी है वो हमको अभी फिलहाल पता नहीं है, बट जो भी रहेगा, n is greater than 10, then opening parenthesis, this one is considered as a opening parenthesis, opening bracket भी हम उसको बोलते हैं. Then do means perform, देन अगेन ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्या परफॉर्म करना है, n की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है. अभी तक ने हमने क्या देखा था, n इक्वल टू n+1, n+2, n+3, ये ऐसा कुछ तो भी सम रहता था. बट दिस वन इज व्हाट एग्जैक्टली, n++, एंड विच इज नथिंग बट द, इट इज नथिंग बट द n, it is nothing but n equal to n plus 1. ठीक है, इसको क्या हम बोलेंगे, n प्लस प्लस, इट्स नथिंग बट द n इक्वल टू n प्लस 1. तो एक से वहाँ पे हमको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है. ठीक है, तो कब करना है, जब n की वैल्यू 10 से बड़ी है. ठीक है, यानी क्या है, 11 है, 12 है, 15 है, या फिर जो भी है. ठीक है, 10 के नीचे अगर रहती है तो उस केस में वो ये डू का ऑपरेशन जो है, डू जो लूप है इसमें नहीं जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने दिया है वाइल. ठीक है, डू वाइल. ठीक है, डू एक तो एग्जीक्यूट होगा या फिर वाइल एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पहले वैल्यू n की 11 आती है, ठीक है, तो 11 को क्या कर देगा, n प्लस प्लस, वैल्यू बिकम्स 12. ऐसे करते 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 वो कहाँ तक जाएगा, वाइल, यानी तब तक वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक n की वैल्यू लेस देन 50 नहीं रहती है. जैसे n की वैल्यू 50 हो जाएगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा गलत, यानी फॉल्स हो जाएगा कि n की वैल्यू 50 है और 50 लेस देन 50, व्हाट विल बी द आंसर इन टर्म्स ऑफ ट्रू फॉल्स, एनीवन, 50 लेस देन 50, False. False. false, false, 50 ना तो 50 से कम है ना तो ज़्यादा है, इट इज़ इक्वल टू, राइट. सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो इट विल स्टॉप, राइट. तो यहाँ पे ये जो छोटा सा कोड दिया है, सिंपल कोड ऑफ 4 to 5 लाइन्स. ठीक है, ये एक ही लाइन में रहते हैं वैसे, 1 2 3 4 लाइन्स कोड दैट कैन जनरेट द डेटा ऑफ 11 to 49. 11 to 49 का डेटा वो जनरेट कर सकता है, छोटा सा 4 लाइन का कोड. ठीक है, सो दैट वाज अ पर्टिकुलर एग्जांपल of a procedure oriented programming language. It is a procedure oriented, so that they follow some basic rules, and with that rules they can attempt to solve a particular problem, which is the third generation computer that can uses this particular language. Switching to the fourth generation language, that is a problem oriented language. Problem oriented language are used to solve specific problem and known as a fourth generation language. These includes a query language, report generators and application generator which have a simple English like syntax rules. सबसे पहला पार्ट तो है क्वेरी जनरेटर और क्वेरी लैंग्वेज. ये जो क्वेरी लैंग्वेज रहती है, ठीक है, दैट डील्स विद द डेटाबेस. अगर आपने डेटाबेस में पाँच स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर किया है, ठीक है, और उन 5 में से आपको चाहिए कि किसने इंग्लिश में 90 के अबव मार्क्स स्कोर किए हैं. ठीक है, तो ओरली आप देख सकते हो, हाँ इसको 70 है, इसको 30 है, 35 है, इसको 92 है, इसको 85 और एक दूसरे को 95 है. तो यानी 5 में से 2 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको 90 के अबव स्कोर है. ये ओरली आप देख सकते हो, यानी व्यू कर सकते हो. ठीक है, once we view the individual score of English, we can come to know
5 में से 2 है, 3 जनों का नहीं है। मगर ऐसे 500 5000 अगर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रहा तो हमको कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डू, वी टाइप अ वन क्वेरी, मीन्स अ क्वेश्चन। ठीक है, इफ इंग्लिश सब्जेक्ट मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में जिनको जिनको मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, ठीक है, फाइंड आउट देयर रिजल्ट्स। एंटर जैसे कर दोगे आप, पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे वर्ड में हम सर्च करते हैं, ठीक है, कोई भी एक आधा वर्ड डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में हमको एक आधा सिंपल वर्ड सर्च करना है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डायरेक्ट कंट्रोल F करके वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेरी लैंग्वेज में आप जितना भी डेटाबेस है, कितना भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसमें से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो directly. So that query optimization. Okay, so this includes in a problem oriented language. Then report generator, अगर हमको रिपोर्ट जनरेट करना है कि इस साल कितने बच्चे पास हुए, अगले साल कितने बच्चे पास हो सकते हैं ये साल के हिसाब से, पिछले साल कितने बच्चे पास हुए, ये जो चीज़ें हैं, टू जनरेट द पर्टिकुलर रिपोर्ट इन द फॉर्मेट ऑफ अ पाई चार्ट, इन द फॉर्मेट ऑफ अ वेन डायग्राम। एवरीवन नोज द वेन डायग्राम, वो सर्कल वगैरह रहता है, उसमें अलग अलग पोर्शंस बताते हैं। ठीक है, Yes, तो yes, sir. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं। Sir, Yes, sir. ठीक है, सो दैट Pi. रिपोर्ट कैन बी जनरेटेड Pi, sir. पाई, so that can be report generated with the help of a problem oriented language. Then application generator, जो अभी applications हम बहुत से यूज करते हैं, तो उसका एक सॉफ्टवेयर पार्ट जो रहता था, जो सिर्फ डेस्कटॉप बेस्ड रहता था, so that was a application can be generated with the help of a problem oriented language. Later on in the fifth generation, or later on in the fourth generation, we are having a mobile phones, and after that particular mobile phones we can have applications which will be uh, which will be download from a play store. प्ले स्टोर भी क्या है, एक सर्वर है, और उस सर्वर पे सभी की सभी एप्लीकेशंस अपलोड की जाती हैं, और वहाँ से हम फिर डाउनलोड करते हैं, और हमारे मोबाइल में जैसे वो डाउनलोड हो जाती है कॉपी, उसको हम एक्सेस करते हैं। सो दैट वाज अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन बेस्ड and it is a problem oriented language. The fourth generation language have reduced programming efforts and the overall cost of the software development. These languages are either a visual environment or a text environment for a program development, similar to that of the third generation language. It is somewhat similar to the third generation, but it gives a more edge of a programming or problem solving orientation as compared to the previous one. A single statement in a fourth generation language can perform the same task as a multiple lines of a third generation language. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे आपको अगर किसी को पता होगा कि दुनिया में सबसे कम लफ्ज़ों में ज़्यादा एक्सप्रेस अगर करना है, तो उसके लिए एक रिसर्च किया गया नासा के द्वारा। सो उन्होंने एक लैंग्वेज फाइंड आउट की, कि एक ऐसी लैंग्वेज जो बहुत ही कम वर्ड्स में आप बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हो। दैट लैंग्वेज इज़ नथिंग बट द संस्कृत। ठीक, कि संस्कृत में आपको अगर बहुत कुछ अगर एक्सप्रेस करना है, वी हैव अ फ्यू वर्ड्स, विद द फ्यू वर्ड्स वी कैन एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो इन केस ऑफ अ टॉकिंग कंप्यूटर, जैसे हम कंप्यूटर जो को जो बोलते हैं, यानी एलेक्सा वगैरह, ये जो चीज़ें हैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं रोबोट्स। ठीक है, तो उसको अगर हम उसका जो अगर कंपाइलर प्रोसेसर अगर हमने संस्कृत में डिज़ाइन किया और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो बहुत ही कम वर्ड्स उसको हमको देने पड़ेंगे, एंड विद दैट फ्यू वर्ड्स दे कैन प्रोसेस, दैट मशीन कैन प्रोसेस, right? So the language which is selected for designing a such a application or a device, that was a Sanskrit language, right? So the with the fourth generation we can code, or we can design a particular small program which is having a very few lines, and in case of third generation it requires a more lines or more number of operations. Further, the programmer just need to drag and drop from the toolbar to create a various items like buttons, text box, labels, etc. Also, the programmer can quickly create the
प्रोटोटाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जैसे अभी हम मोबाइल में बहुत से ऐसे फोटोशॉप या फिर फोटो एडिटिंग, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिसमें सिर्फ हमको क्या करना पड़ता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, राइट। अगर आप स्टेटस रखते हो व्हाट्सएप के ऊपर, तो वहाँ पे भी बहुत से अलग अलग ऐसे चीज़ें अवेलेबल रहती है जो सिर्फ क्लिक करने से ही आपके फ़ोटो के ऊपर आ जाती है। So what exactly it is? It is nothing but the fourth generation language which provide that functionality to drag and drop whatever the particular operation that we want, right? So this is about the problem oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जिसमें जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसके ऊपर वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते थे, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली यूज राइट नाउ इन फोर्थ जनरेशन, whereas in the fifth generation we are having a natural language. Natural language are designed to make a computer to behave like an expert and solve the problems. So in case of procedure oriented or in case of problem oriented, we have to give the some data to the computer, and then they will process it and will give the result as an output. But in case of a natural language, that what they are doing in a real time application. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको आप सुन रहे हैं, आप जो बोलोगे वो मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन वी कैन गेट अ क्विक रिस्पॉन्स, बट सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी विल गेट विद द हेल्प ऑफ अ नेचुरल लैंग्वेज फ्रॉम अ मशीन। मशीन को अगर आप पूछते हो तो वो आपको जवाब देगी। जैसे एलेक्सा है, सीरी है, ये जो भी ऑटोमेटेड बोट्स है, उनको रोबोट नहीं बोला जाता, बोट्स बोला जाता है, क्योंकि छोटे छोटे रहते हैं वो, ठीक है। उनको हाथ पैर वगैरह कुछ नहीं रहता, तो दे आर कॉल्ड एज अ बोट्स। सो दैट बोट्स विल रिस्पॉन्ड यू, so that make possible with the help of understanding a natural language by that particular device. The programmer just need to specify the problem and the constraints for problem solving. Then natural languages such as lisp and Prolog are mainly used to develop artificial intelligence and expert system. These languages are widely known as a fifth generation language. ठीक, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक कंसेप्ट है, योर स्पेनिश जो पालक रहता है, दैट कैन कम्युनिकेट विथ ह्यूमन, दैट कैन सेंड द ईमेल टू द ह्यूमन. So how it is possible? So that made possible with the help of a sensor, and as well as they code like a natural language can understood by that particular system, right? तो ये जो प्रोलॉग है या फिर लिस्प है, that languages made the system which can communicate directly with the human as a human, ठीक है, as not exactly human, but it behaves like a particular human up to certain extent. आप उसको सवाल पूछो वो आपको जवाब देगा, ठीक। so like question answering that can be made possible, ठीक है। they are also working on the neurons. जो रोबोट्स है उसके दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स डालने की कोशिश की जा रही है, सो दैट द रोबोट कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन, जैसे रजनीकांत जी के रोबोट में मूवीज में बताया था. सो दैट कैन बी द वे Android टू. humanoid robo. यस यस Android humanoid robo. यस. सो दैट कॉम्बिनेशन कैन बी मेड लाइक दैट, मे बी हो जाएगा, क्योंकि बहुत से हॉलीवुड मूवीज में ऐसे बहुत से कंसेप्ट दिखाए गए हैं कुछ सालों पहले कि जो आज एक्चुअल में एग्जिस्ट है, ठीक है। एक बीच में हॉलीवुड मूवी आई थी 5-6 साल पहले, जिसमें एक फ्लाइंग मैन बताया था, एक एक इंसान इंसान उसको कुछ पर रहते हैं और वो फ्लाई करता है. पर मीन्स पंख रहते हैं विच इज़ आर्टिफिशियल. सो विद द हेल्प ऑफ अ इंजिन, एक सेटअप है उसका, और विद द हेल्प ऑफ दैट ही कैन फ्लाई, ठीक है। तो फ्रांस ने वो डेवलप किया है, फ्रांस के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो इंसान को फ्लाई करवा सकता है, ठीक है। वो मिलिट्री में यूज़ कर रहे हैं उनके, उनके पास थोड़ा अलग सेटअप है, बट द ऑपरेशन इज सेम. ह्यूमन कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, ठीक है। और बहुत से ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है. आई डोंट नो इन गोवा, बट देर आर सम प्लेसेस वेर वी कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ वन मशीन फ्रॉम सी. मूवीज में वगैरह आपने देखा होगा, उन्होंने बताया है, ठीक है. सो दिस आर द सम ऑफ द एप्लीकेशंस थ्रू विच
we can develop a such kind of infrastructure which is very easy and it is quite efficient than that of the previous one. Okay, so this is all about the programming languages. Now we moving towards conversions, that binary arithmetic operations. So up till now we have just discussed binary arithmetic operations under that binary addition. Okay, any query up to प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? एनीवन? No, sir. No, sir. ओके देन. No, sir. ओके, हमारा लेक्चर 10:30 तक है ना? 11:30 सॉरी 11:30. 11:30. ओके ओके Yes, sir. ओके. So we will do binary subtraction or binary multiplication today. So we know it, binary multiplication is nothing but, or any multiplication in terms of decimal multiplication is also, it is nothing but multiple times the same number will be added, right? So the binary multiplication of two binary numbers can be carried out in the same manner as the decimal multiplication. However, unlike decimal multiplication, only two values are generated as the outcome of multiplying the multiplicand bit by 0 or 1 in their binary multiplication. तो यानी यहाँ पे जब भी मल्टीप्लिकेशन हम बोलेंगे या फिर एडिशन के रिलेटेड जो भी रिजल्ट आएगा, इट शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ अ 0 एंड 1, उसके अलावा कुछ आ नहीं सकता. So these values are either 0 or 1. The binary multiplication can also be considered as a repeated binary addition, जो अभी हमने बोला. For instance, when we are multiplying 7 with 3, 7 3s are 21. So it simply means that we are adding the 7 number to itself 3 times. 7 plus 7 14, 14 plus 7 21. So that simple concept they are implementing with the help of a binary multiplication. Therefore, binary multiplication is performed in the conjunction with the binary addition operation. Right. Now, is the example is visible? Because इसका font थोड़ा कम है. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So when we are dealing with the binary multiplication, we are having a one chart or the rule. 0 into 0, anything multiplied with the 0, that result is 0. So 0 into 1 0 रहेगा, 1 into 0 ये भी 0 रहेगा. ठीक है. So in the first three there is no confusion, 0 0 0 will be the product. But in case of a last one, 1 into 1, that becomes a value as a 1. ठीक है. इज इट क्लियर? दैट रूल इज वेरी सिंपल. 1 से हम 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, बट 0 से किसी को भी मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0 ही आएगा. द अबव टेबल इज क्लियरली शोन दैट द मल्टीप्लिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ अ कैरी. यहाँ पे कैरी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है जो एडिशन में था. ठीक है. सो इफ यू आर गोइंग विद द एग्जाम्पल दैट 2.32, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डेसिमल नंबर्स 12 एंड 10. डेसिमल में तो हमको पता है 12 into 10, that becomes a 120, right? But in case of binary, how we are doing? First we have to convert 12 into the binary format. Binary format is 1100. So first value of 1 is 8 and second value of 1 is 4. 8 plus 4, that becomes a 12. Is this understood how that 12 comes? Yes, sir. Anyone having any problem with the 12, how that can be mapped with the binary? Sir, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Sir, can एक you बार please repeat repeat करो, one sir. time? Yes, yes, yes. I will use the paint for this. So in case of simple representation of 0, 0 can be represented as 0 0 0 and 0. ठीक है. But this position is indicating 2 to the power 0. This indicating 2 to the power 1. This indicating 2 to the power
2 and this indicating 2 to the power 3, right? So that value becomes, इसकी value क्या रहेगी 2 to the power 0 की 1, 2 to the power 1 की 2, 2, then 2 to 2, the power 2 की 4, then 2 4, to the power 3 की 8, 8. 8. ठीक है 8, थोड़ा 8. ये इंक्लाइन इंक्लाइन होते जा रहा है, ठीक है 8 4 2 1, तो दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें से अगर हमको निकालना है कि 12 हमको चाहिए, सो व्हाट वी डू, वी विल पुट this will be 1, this will be 1, 8 plus 4 that is 12, this becomes 0 and this becomes 0, right? Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in that way we will get the 1 1 0 0 as an a 12, बाइनरी का जो इक्वेलेंट है 12, दैट वाज 1 1 0 0। लेटर ऑन 10 भी हम उसी प्रकार से लाएंगे 8 प्लस 2, सो दिस मीन्स यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ठीक है। सो 1 0 1 0 दैट बिकम्स 10। नाउ हाउ वी आर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन, we are doing the multiplication with the help of simple rule that अगर 4/4 है तो हम 4/4 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें से फर्स्ट जो जीरो है राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लायर का जो फर्स्ट जीरो है दैट जीरो इज मल्टीप्लाइड विद द ऑल द मल्टीप्लिकेंट, राइट। इन नॉर्मली जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे प्रकार से करेंगे, जीरो इज मल्टीप्लाइड विद द ऑल द मल्टीप्लिकेंट, वी विल गेट द 0 0 0 0 एज एन फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट। देन नीचे जब हम आते हैं सेकंड मल्टीप्लिकेशन के लिए तो एक प्लेस हम वैकेंट रखते हैं, ठीक है नॉर्मली, सो दैट 1 इज मल्टीप्लाइड विद द ऑल द वैल्यूज, दैट 1 1 0 0 ये जो पूरी मल्टीप्लिकेंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट बिकम्स 0, 1 multiplied by 0 again it is 0, now 1 multiplied by 1 as per the rule 1 into 1 that becomes a product value as a 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, we put that as a 1, then again 1 into 1 that becomes 1, right? Then we will place two empty spaces after the first second third on the third one, ठीक है। थर्ड जब हम सर मल्टीप्लाई, यस सर 1 into 1 में कैरी नहीं होगा क्या? नहीं, यहाँ पे उन्होंने बोला है ना that when we are trying to do with the multiplication does not involve the concept of a carry, right? तो बस ऐसे ही 1 into 1 can be written as 1. 1 exactly, क्योंकि Okay. मल्टीप्लिकेशन जब भी आप करते हो तो 1 into 1 इट व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स 1 को एक ही बार, ज्यादा बार नहीं, एक ही बार एक में ऐड करो, यानी आने तो वाला 1 ही है ना। जैसे मैं अगर बोलता हूँ 2 into 2 तो 2 को 2 टाइम्स ऐड करो, 2 + 2 आंसर आएगा 4, या फिर 2 into 3 2 को 3 टाइम्स 2 में ऐड करो, यहाँ पे 1 को 1 टाइम 1 में ऐड करो, यानी 1 ही रहेगा वो, करेक्ट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट विल नॉट जनरेट द एनी कैरी। सो इन केस ऑफ अ सेकंड रो यहाँ पे यानी फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट हो गया, फिर सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट जो रहेगा दैट विल बी 1 1 0 0, देन अगेन 0 इज मल्टीप्लाइंग विद द होल नंबर दैट मल्टीप्लिकेंट दैट बिकम्स 0, और 1 से अगर मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज वही आएगा, ठीक है। सो नॉर्मली जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो सिमिलर टाइप वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, बट हियर वी आर एडिंग दिस नंबर्स। तो वो एडिशन का जो भी हमने बाइनरी एडिशन का जो भी रूल देखा था वो यहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हो। 0 प्लस और इसमें नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा, 0 + 0 0, 3 times 0 that also 0, 0 + 1 then there is a 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, and last one is 1 as a simple 1. So we will get the final product
4 times 1, 3 times 0. That means 1, 1, 1, 0, 0, 0. Now, if you want to calculate whether our answer is right or wrong, so that we can calculate with the help of 2 to the power. तो इसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो. Your answer is 1, 1, 1, 1, then 0, 0, then 0. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, then 2 to the power 5, and 2 to the power 6. What is the value of 2 to the power 6? 64. 64. 64. ठीक है, 64 प्लस 32, Yes. 32 प्लस 16. 16. प्लस 8. Okay. 8. नाउ इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? 120. It becomes 120. 120. So that will be the value. ठीक है, डेसिमल में अगर हम 12 इंटू 10 अगर करते हैं तो 120 आने वाला है, और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या रहेगा? ये रहेगा 1 1 1 1 0 0 0. करेक्ट? सो दैट विल बी द आंसर. ठीक है, सो 15 इंटू 14 का एक एग्जाम्पल है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज ऑलरेडी 10:31. सो इज अटेंडेंस इज अवेलेबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir.